بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بہاؤ کا ایپیسوڈ 9۔ اس کے مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے کرسٹ نے۔ سامنے یہاں سے وہاں تک جہاں تک وہ دیکھ سکتے تھے ریت تھی اور جھاڑیاں تھیں، اور ان میں ایک وہ نہ تھا، سارے تھے جو کبھی جھاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر دانت نکالتے اور کبھی ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے لمبے کان ہلاتے۔ وہ دانت نکوس کر ان کی طرف بڑھتے پر وہ پنجوں میں نہ آتے۔ پر یہ تو ایک تھا، اتنے سارے کیسے ہو گئے؟ ان میں سے ایک کتے کے سر میں کچھ گھوما۔ جب ہم خوش کھیتوں میں لوٹانیاں لے رہے تھے اور یہ سیاہ اپنے لمبے کان جوڑے پنجوں سے مٹی کھودتا تھا تو ہم نے اسے دیکھا اور پک پک کرتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ ایک تھا، اور یہ ایک ڈوبو مٹی پر کودتا رکھوں میں آیا تو ہم اس کے پیچھے تھے۔ یہ تو ایک تھا۔ ہماری زبانیں اس کی رت کا سواد لینے کے چاؤ میں باہر لٹکتی تھیں اور ان سے راڑ ٹپ ٹپ گرتی تھی، اس راستے پر گرتی جاتی تھی جس پر ہم اس سیہے کو پکڑنے کو اپنا زور لگاتے بھاگتے تھے۔ ہمارے تو جو پنجوں میں آ جاتا ہم اسے کھاتے ہیں، پر اس سفید نرم اور پلپلے جانور میں رت بہت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم چاروں پانچوں اسے پکڑنے کو بھاگتے تھے اور پھر رکھوں کے اندر جاتے تھے اور اس پر نظر رکھتے رکھوں کے اندر جاتے تھے۔ اس کا چھوٹا سا پھرت والا جسہ ہر شے پھلانگتا جاتا اور اسے پتا تھا کہ میرے پیچھے میری رت پینے چاٹنے والے تھوتنیاں اٹھائے سونگتے بھاگتے چلے آتے ہیں۔ تو وہ اپنی ٹانگوں سے بھاگتا نہ تھا، اڑتا ان کو پنکھ لگاتا جاتا تھا۔ ایک بار اس نے ایک جھاڑی میں اپنے آپ کو گم کرنا چاہا، پر ہم اس کی باز پر تھوتنیاں رکھ کر اس کے پاس ہوتے جاتے تھے۔ وہ پھدک کر اپنی رت بچانے کو دوڑنے لگا۔ جہاں رخ ختم ہوتے ہیں وہاں سے ریت شروع ہوتی ہے، اور ہم کبھی ادھر کو نہیں گئے۔ ہم تو بس بستی اور اس کی سوکھتی کھیتیوں کے آسے پاسے رہتے ہیں، پر رت کے سواد نے ہمیں بے بس کیا اور ہم وہاں سے نکلے جہاں ہم رہتے تھے۔ تو جب وہ آخری رخ کے پاس پہنچا جس کی چھاؤں ریت پر پڑتی تھی تو وہ رکا، جھجکا اور پھر ریت میں چلا گیا۔ ہم بھی وہاں رکے اور جھجکے، کیونکہ اس کے آگے ہم کبھی نہ گئے تھے اور جانتے نہ تھے کہ آگے کیا ہے، پر ہماری تھوتنیوں نے سونگ کر بتایا کہ آگے سیاہ ہے، تو ہم سب بھول بھال کر رکھوں سے نکل کر ادھر چلے گئے جہاں ہم آسمان تک ریت دیکھتے تھے۔ اور تب وہ ایک سے بہت سارے ہوئے۔ پہلے تو ہم سب ان کو پکڑنے کے لیے الگ الگ ان کے پیچھے بھاگنے لگے، کبھی کسی ٹیلے پر، کبھی کسی جھاڑی میں اور کبھی کسی سوراخ میں، اور ہم سب اچھل کود کر رہے تھے۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہم پانچوں چاروں الگ الگ جگہوں پر اچھل کود کر رہے تھے، اور کس کے پیچھے اچھل کود کر رہے تھے یہ صرف اسے نظر آ رہا تھا جو ایسا کر رہا تھا، اور باقیوں سے وہ اچھل تھا تو ہم رک گئے۔ وہ صرف ایک تھا اور یہ بہت سارے تھے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اور اگر یہ بہت سارے ہیں تو سب کو نظر کیوں نہیں آتے؟ تب وہ کبھی جھاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر دانت نکالتے کہ آؤ ہمیں پکڑ لو، اور کبھی ہمارے سامنے بیٹھ کر اپنے لمبے کان ہلا ہلا کر ہمیں تاؤ دلاتے، اور ہم انہیں دیکھ کر ڈرنے لگے اور ہانپنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی اپنی دمیں لرزتی ٹانگوں میں دبائیں اور رکھوں کی طرف واپس بھاگے، پر ہم وہاں تک ان میں پہنچتے پہنچتے کچھ اور ہو چکے تھے۔ ہمارا سر گھوم چکا تھا، ہم بدل چکے تھے، ہماری رت گرم ہو کر ٹانگوں اور دموں میں سے پھٹ کر باہر آتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں کھاتے، پر ہم کچھ ایسے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کو بھنبوڑنا چاہتے تھے، رت پی جانا چاہتے تھے۔ ہم رکھوں میں بھاگتے بھاگتے آپس میں الجھتے اور بھونکتے تھے، اور ہماری زبانوں پر کچھ ایسا پھوٹا کہ وہ وارچھوں میں سے گرنے لگا، اور یہ رال نئی جھاگ تھی جیسے بڑے پانیوں سے پہلے گھاگرا پر آتی ہے۔ ہم چاروں پانچوں وہ نہ تھے جو تھے، اور ہم کچھ اور ہو چکے تھے، رکھوں میں بھاگتے تھے۔ چیوا نے نیچے دیکھا اور دور املی کے گھنے درخت میں گم ماسے کو ہیک لگائی۔ ہے ماسا؟ ماسا اونگتا تھا، وہ چونکن نہ ہوا۔ بول، جو آ گیا وہ آ گیا، بول۔ ان کتوں کو کیا ہوا جو یوں ایک دوسرے کو بھنبوڑتے اور کاٹتے جاتے ہیں؟ ابھی ایک صحیح کے پیچھے بھاگتے گئے تھے اور اب واپس آئے ہیں تو ان کے منہ سے جھانک بہتی ہے۔ مجھے کیا پتا کیا ہوا؟ ماسا غصے سے بولا۔ چیوا جو اب ماں سے جیسا ہو گیا تھا اپنی ٹہنی سے اچک کر دوسری پر ہوا، اور پھر دوسرا رخ پر، اور پھر املی کے پتوں میں اس نے جا جھانکا۔ تجھے پتا ہے پر بتاتا نہیں۔ تو یہاں بھی آ گیا، پہلے بستی چھوڑ کر ادھر آیا، اور اب ادھر بھی چین نہیں لینے دیتا۔ جدھر جاتا ہوں ادھر مامن ماسا کرتا آ جاتا ہے، جناور کا بچہ۔ مامن ماسا۔ چیوا نے اسے چھیڑا اور پھر اس کے پاس ہو کر مٹھی کھول کر بولا، یہ کھائے گا؟ سوہے بیر۔ ماسا جو ابھی گرم ہو کر منہ سے تھوک نکالتا بولتا تھا، بیر کی بات سن کر اکا ٹھنڈا ہو گیا اور چیوا کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے منہ دوسرے پاسے کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بیر تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے رکھوں میں آ کر بستی سے اس کے وسینکوں سے سارے ناطے توڑ دیے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسے بستی میں جانا پڑتا، جیسے وہ ماتی کو ایک بار بتانے گیا تھا کہ بڑے پانی تیرے کھیتوں تک نہیں آئے، ورنہ وہ ادھر ہی رہتا۔ وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا، پر بیروں کا سواد اپنے تاروں سے چپکا کر ساتھ لے آیا تھا۔
اور یہ स्वाद छूटता ना था। पहले रुखों में झील पासे 2 बड़े झाटे वाली पुरानी बेरियां थीं और उन पर पकने वाले सोहे बेरों को वो टहनियों से लटक लटक कर खाता और पेट भरता। पर एक बेरी ऐसी बूढ़ी हुई कि खड़े खड़े सूख गई और दूसरी को अंदर से कीड़े ने खा लिया और वो भुरभुरी होकर गिर गई। ये अभी 1 बरस पहले हुआ था। रुख सूख रहे थे। कई और रुखों के साथ भी यही हुआ। वो अंदर से खोखले होकर रातों रात गिर जाते थे और कई बार मासा जब एक रुख से दूसरे पर जाने को बैठक लगाता तो देखता कि दूसरा रुख तो है ही नहीं, वो तो गिर चुका। ये बूढ़े हो रहे थे और उनकी जगह नीचे झाड़ियां तो उगती थीं, पर उन रुखों का बीच पौधा बनकर ऊंचा न होता था। तो चीवा ने मुट्ठी खोली, उसमें 3 सोहे बेर थे। ये कहां से लाया? मासा ने उचक लिया, हमारी बेरियां तो गिर चुकी हैं। ये बेर नहीं, पीलू हैं। पीलू? उसने एक बेर चखा, नहीं ये तो बेर है। तुमने देखा नहीं मासा, तुम ऊपर देखते हो, नीचे जमीन को तो देखते नहीं। वहां अब रुखों के बजाय झाड़ियां उग रही हैं और इन बेरों की झाड़ियां हैं। इन्हें पीलू कहते हैं। कौन कहते हैं? पता नहीं। मैं जब उधर छप्पर में भेड़ बकरियों का छेड़ू था तो एक टप्पड़वासी ने मुझे खिलाई थी और कहा था कि वो इन्हें कहीं और से लाया है। तब उनकी झाड़ी इधर नहीं होती थी और अब बहुत सारी बन रही हैं। उन पर ये बेर लगे तो मैंने चखे और जान लिया कि ये बेर नहीं, पीलू हैं। हाँ, ये बेरों जैसी नहीं है। और तू पूछता था कि उन कुत्तों को क्या हुआ है? हाँ, यही पूछता था। ये उधर गए होंगे जहां से रेत शुरू होती है और उसके बाद उधर और कुछ नहीं है, बस रेत की दुनिया है। अपने रुख छोड़कर उधर गए होंगे किसी सिंह के पीछे। तो उधर जाने से क्या होता है? सर घूम जाता उधर जाने से। अपने रुखों को छोड़कर उधर जाने वाले को कुछ हो जाता है। मैं छोटा था तो देखता था कि जो कुत्ता उधर जाता वो हल्काया जाता, उसके मुंह से झाग निकलती थी। और अगर हम तुम जाएं तो? मैं और तुम तो पहले से हल्काए हुए जीवा हैं। जीवा कुछ दुखी हुआ। और जो कोई और जाए तो वो भी हमारी तरह का हो जाए। इतने में मोर बोलने लगा। मासा ने कान लगाकर सुना कि शायद दोबारा बोले, पर वो ना बोला, चुप रहा। ये अब उधर झील के आसे पासे फिरता है, रुखों में कम आता है। मोर कितने बरस का होता है मासा? ये तो इन रुखों में हमेशा से है। हाँ, मासा ने सर हिलाया, ये तो मुझसे पहले का है। पता नहीं मोर कितने बरस का होता है, पर अब ये बूढ़ा होता है। इसकी आवाज अब मुश्किल से रुखों को पार करके बस्ती तक जाती है। पहले तो जानते हो, जब ये बोलता था तो लगता था घाघरा किनारे खड़ा बोलता है और सर पर खड़ा होकर बोलता है। ये रुख क्यों सूख रहा है मासा? मासा चुप रहा और मुंह फुलाकर दूसरे पासे देखने लगा, जैसे बच्चा रूठ कर बैठता है। बताओ ना मासा। बस जो आ गया वो आ गया। मासा बोला, वो तो मैं जानता हूं, पर रुख कम हो रहे हैं। पुराने खोखले होकर गिरते हैं, पर उनकी जगह नए तो आते नहीं। मैं उधर गया था रेत की तरफ। नहीं, रुखों से बाहर नहीं गया था। यूं ही वहां खड़ा होकर देखता हूं तो पता है क्या देखता हूं? किनारे के रुख गिरते हैं तो उनकी जगह रेत आ जाती है। रेत रुखों को चाटती बढ़ती जाती है। क्यों मासा? पता नहीं क्यों, पर यह है कि... बोलो मासा, तेरे पास और बेर है? नीचे है झाड़ियों में, मैं तुझे ला दूंगा, तू बता। तो फिर उधर चलते हैं नीचे, तो मैं बताता हूं। वो दोनों फुदक कर नीचे आए और रुखों की छांव, पत्तों और सूखी टहनियों झाड़ियों में चलने लगे। मैं बरसना कम हो गया है, इसलिए रुख भी कम हो चले हैं। देख जीवा, पिछले 6-7 बरस में कितनी बार बरसा है। बस्ती वाले बाजरा और तिल मिट्टी में रखते हैं तो वो रखे रहते हैं और मैं नहीं पड़ता। अब तो उनका बीज भी सूख सड़कर पुराना हो गया और उगने जोगा नहीं रहा। एक बार मैं आया था और वो भी ऐसा कि धूल को ऊपर उठाया और खत्म हो गया। बड़े पानी ना होते तो ये सब भी अब तक रुखों में आ जाते हैं। क्या स्वाद आए जो ये सारे इधर आ जाए। हाँ। चीवा ने सर हिलाया और फिर हंसा। कैसा स्वाद आए? हा। मासा खड़ा हुआ और मुंह खोलकर दांत पूरे के पूरे निकालकर हंसने लगा। वो हंसता तो था, पर उसकी आवाज अब कम निकलती थी। रुखों में बैठे पंख पखेरु उड़ने लगे, पर अब वो भी कम थे और रुखों के पत्ते भी छिद्रे थे। सूरज की रोशनी जो पहले कम नीचे तक आती थी अब ज्यादा आती थी। सब आ जाए तो बड़ा स्वाद आए। चीवा हंसते हंसते चुप हुआ। मासा ने उसकी तरफ देखा तो वो सर झटक कर बोला, 6-7 बरस पहले पारोशनी के साथ भी वही हुआ था जो गागरी के साथ हुआ था। क्या हुआ था? जो आ गया वो आ गया। मासा गुस्से से बोला, तू उन झाड़ियों की तरफ चल जहां बेर लगे हैं। वो फिर चलने लगे। वो मरा हुआ आया था। जो आ गया वो आ गया। मासा गुस्से से बोला, तू उन झाड़ियों की तरफ चल। वो फिर चलने लगे। तू मुझे यहां ले आया और खुद चला गया। वो देखते रहे बहुत देर तक, दरिया के उधर दूसरे किनारे को देखते रहे और उस भेद को पाने के लिए देखते रहे जो वहां थे, वो जो कभी थे।
वो सारे के सारे उधर थे और उनके बीच घाघरा था। रुत बदल चुकी थी और शाम समय पानी पर से चलती हवा उसे छूती, जुस्से को खनकार कर निकोर करती जाती। मैं तो तुम्हें साथ नहीं लाया था, तुम खुद मेरे पीछे पीछे चले आए थे। वर्चन हंसा। वर्चन जो अब ऐसे हंसता था जैसे अपने आप पर हंसता हो। और जब मैंने दर्शोती को पार करने के लिए अपने लीड़े उतारे और उसमें चला तो पानी अभी मेरे घुटनों तक आया होगा जब तुम अपने बेअंत पांव और हाथों से मुझसे चिमट गए और मैंने जाना कि मेरा वो बर्तन बन गया जिसमें मैं जमीन में जाऊंगा। तो और क्या। टोरका भी हंसा, पर इसी तरह झुका हुआ। मैं कई दिन और कई रात तुम्हारे पीछे पीछे चला आया था और मैंने देखा कि तुम पानियों में उतरते हो और मुझे छोड़ते हो। मैं तुम्हें जाने देता, पर तुम मुझे यहाँ इस बस्ती में घाघरा के किनारे तो ले आए और फिर चले गए। कहाँ चले गए थे? वर्चन ने एक ढीम उठाकर घाघरा पर फेंकी जो भुरभुरी थी तो एक जगह ना पड़ी बल्कि उसके हिस्से बट गए और मोटे मेघ की तरह पानी पर बरसे और पानी फैलते गए। मुझे आए हुए कई दिन हो गए, पर तूने इस तरह पहले ये ना पूछा कि कहाँ गए थे। अब क्यों पूछते हो? तुम्हारे बालों में रेत और मिट्टी थी और तुम्हारा पेट पिचका हुआ था। तुम चलते थे तो तुम्हारी टांगें तुम्हारा बोझ न सहारती थी, उसे गिराने को फिरती थी। मांस पर झुर्रियां थी और तुम्हारी आंखें कहीं और थी, मुझे न देखती थी। आज मुझे देखती हैं तो पूछता हूं। मेरे बालों में निरी मिट्टी और रेत नहीं, सफेदी भी है। मैंने देखा नहीं। हाँ, अब देखा तो है, पर अभी से ऐसा क्यों? ऐसा ही होना था। जो एक जगह पर टिके नहीं वो जड़ें नहीं पकड़ता और फिर घूमता है और उसके बालों में मिट्टी और रेत रहती है। वो सब कुछ देखता है जो बस्ती से परे है और दरिया से परे है। वो निरा अपनी बस्ती के लिए नहीं होता, दूसरी बेअंत बस्तियों में रहने वाले बेअंत लोगों के लिए भी होता है। उनके लिए उड़ता है, सोचता है और देखता है, और यूं वो कुछ जल्दी से बूढ़ा हो जाता है कि वो अपने बरस जरा शताबी से गुजार लेता है। मैं अपाया नदी तक तो ठीक था, पर उसके पार मुझे कुछ हुआ। और उसके बाद मैं कहाँ था और क्यों था, किस हाल में था, मुझे क्या काटा, मेरे जुस्से में कौन से जहर गए, मैं नहीं जानता। ना मैं सोया ना जागा, ना रास्ते पर चला ना भटका, और बस मैं उसी हालत में था जब मैंने आसमान पर धुएं की एक लकीर देखी और मैंने जाना कि ये पकली के आवे का धुआं है। मैंने हल्की ठंड अपने अंदर चलती महसूस की तो मैंने जाना कि मेरा दरिया आसपास है। और फिर तुम वहां आवे के करीब थे। मैं तुम्हारे पास गया और पूछा कि तुमने पूछा था, ठहरो मैं बताता हूं। तुमने पूछा था कि ये पारोशनी की बस्ती है। हाँ, किसी एक जगह पर वापस आने के लिए, चाहे तुम भूखे हो और तुम्हारे जुस्से में जहर हो और तुम मरते हो, प्यास से तुम्हारी जुबान अकड़ती हो, तुम वापस आते हो तो किसी एक के लिए। तो फिर तुम अभी तक बस्ती में क्यों नहीं गए, पारोशनी से मिले क्यों नहीं? उसने कभी मेरा पूछा? वो किसी से क्या पूछे, वो सारे भेद आप जानती हैं। पर जब वो मुझे देखती थी तो वो सारा सफर देखती थी जो मैंने और तुमने मोहिंजो से यहां तक किया, और उस जुदाई को देखती थी जो उसके जुस्से में पलती थी। उस सवेर मैंने देखा था तो उसका पेट साथ लगा हुआ था, तो मेरा मुंह खुल गया। कैसे क्या हुआ? उसकी रंगत फीकी थी, उसकी आंखों में जैसे बेअंत पखेरु डूबते थे। तब मुझे समरो ने बताया, हाँ, वो रोया ना था। मैंने उसे बहुत कहा कि यह तो कोई मुश्किल बात नहीं, एक औरत कई बच्चे जनती है, अगर एक हुआ और रोया नहीं तो क्या हुआ? पर वो मानती नहीं थी और वो मुझसे अलग हो गई जैसा मेरा कसूर हो, और वो समरो से भी परे हो गई, जैसे दरिया के बीच कोई टीला हो जो किनारों से दूर हो गया हो। तब मैं यहां से चला गया। मैं यहां क्या रहता? मैंने पोटली में आटा बांधा, छप्पर से पांव बाहर रखा और जहां उस पांव का निशान था उस मिट्टी को भी पोटली में संभाला और चला गया। पता नहीं ये कितने बरस पहले की बात है। कितने बरस हो गए? बहुत सारे। डोरका की आवाज में थकावट थी। वो भी बड़ा बूढ़ा हो गया था। इतने बरसों में वो अभी घास फूस तो नहीं हुआ था, कामकाज का था। आवे का सारा काम उसी ने संभाल रखा था और पकली का भी। इस बात को 6-7 बरस तो हो गए, और इन बरसों में मैंने तुम्हारा बहुत ध्यान किया। तुम अपने लिए सांस लेने वाले पहले बंदे थे जिसके साथ मैंने बात की। जैसे मैंने पानी को पहली बार देखा था और मोहिंजो को पहली बार देखा, बाहर की दुनिया को पहली बार देखा, तो तुम पहले बंदे थे जो अपने लिए सांस लेते थे। तुम अगर मुझे साथ ना लाते तो मैं अब तक उसी दीवार के अंदर होता, झुका हुआ जनावर होता। तुम क्या करते रहे इतने ढेर बरस? ऋग्वेद में आया है कि उन्होंने ही आही को मौत के घाट उतारा जो उनका वेरी था, और 7 दरियाओं को जारी किया और उन्हें ऐसे खोला जैसे वो रुके हुए फवारे थे। मैं उन दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों में रहा, मैंने वहां अपना बीज बोया। ऋग्वेद? डोरगा ने मुंह खोला। ये उनकी कहानी है जो उधर आ चुके हैं और अब धीरे धीरे वहां से नीचे उतरते हैं कि यहाँ का सब्जा और हरियाली और पानी तो वो पी चुके और खा चुके। क्या ये 7 सिंधु हैं? ना, अलग हैं। और उनमें से एक घाघरा है जिसे अब वो सरस्वती बोलते हैं, और अस्कनी जिसे वो चंद्रभागा कहते हैं, वात्सता, अर्जेकिया, पितरदी, पारोशनी जिसे इरावती भी बताते हैं, और बड़ा सिंधु
اور میں نے سب کا پانی پیا۔ اس پانی کا سواد ایک جیسا ہے۔ ان میں گھلی مٹی جب منہ میں جاتی ہے تو تالو اسے جانتا ہے۔ میں ہریوپیا میں بھی رہا۔ یہ ہریوپیا وہی ہے جہاں تم مہنجو سے پہلے جانا چاہتے تھے پر نہ گئے؟ ہاں، بس یہ جانو کہ یہ دونوں جڑواں ہیں، ایک جیسے ہیں، بس دریاؤں کا فرق ہے۔ میں جب پہلی بار ہریوپیا میں گیا تو یوں لگا جیسے اپنی پرانی بستی میں جاتا ہوں۔ میں جانتا تھا گھر جو ہیں وہ پہاڑ پاسے کی سیدھ میں ہیں اور لمبائی میں ہیں۔ ان کی گلیاں 6 کروں ہوں گی، درمیان میں بچاؤ کی عمارت ہوگی، چوک میں چوکیدار کا چھپر ہوگا، اور گھر کئی کوٹھوں کے ہوں گے جن میں نہانے کے کمرے ہوں گے، تالاب ہوں گے اور تندور ہوں گے۔ پکی گلیوں کے بیچ نالیاں اینٹوں سے ڈھکی ہوں گی۔ تب وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تم پہلے سے کیسے جانتے ہو؟ تب میں نے کہا کہ میں مہنجو دیکھ چکا ہوں اس لیے۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مہنجو اور ہریوپیا ایک ہیں۔ یہ مہرے، برتن اور مٹی کے کھلونے پہلے گھاگرا سے ادھر آئے اور ادھر سے مہنجو گئے۔ ہریوپیا کی بستی کے باہر کن کوٹنے اور پیسنے والوں کے گھر ہیں۔ یہ خاص لوگ ہیں جن کو وہ واہک کہتے ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں۔ کیسے؟ وہ لوگ بے اند برسوں سے، جب سے ہریوپیا ہے تب سے کنک پیستے ہیں، اور وہاں گھروں کے اندر تاریکی میں وہ جھکے ہوتے ہیں بڑی بڑی چکیوں کے اوپر، اور وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے۔ ان میں سے کئی ہیں جو آلتی پالتی مارے اپنی چکی کے آگے اتنی مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب وہ اپنی ٹانگوں کو سیدھا نہیں کر سکتے، اور ان کو اٹھا کر ادھر ادھر رکھا جاتا ہے۔ ان کی ٹانگیں جڑ گئی ہیں۔ یہ بھی جھکے ہوئے لوگ ہیں میری طرح کے۔ ہر بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جہاں وہ کن پیستے ہیں وہاں سے گزرے تو چکیوں کے پارٹ گرر گرر ایک گہری گونج کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہیں یہی لوگ چلاتے ہیں۔ اور وہاں سے عمارت کے اوپر جو روشنی کے چوکور سوراخ ہوتے ہیں، ان میں سے سفید آٹا ایک گھنے اور بھاری بادل کی طرح باہر آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اندر وہ کتنا گھنا اور بھاری ہوگا۔ ان کے سانسوں میں جاتا ہوگا اگر وہ سانس لیتے ہیں تو، پر میں اندر نہیں گیا۔ تم جب ہریوپیا سے نکلے تو پیچھے مڑ کر دیکھا؟ کیوں پوچھتے ہو؟ شاید وہاں بھی کوئی ڈورگا ہو جو تمہارے پیچھے آتا ہو اور پھر گم ہو گیا ہو یا پکڑا گیا ہو، اور اسے پھر سے ادھر اس بڑے گھر میں لے گئے ہوں جہاں سے وہ گہری گونج آتی ہے اور جن کے سوراخوں میں سے آٹے کا سفید بادل نکلتا ہے۔ اور تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہاں ہوتا تو تمہاری طرح مجھے پیچھے سے آ کر چمٹ جاتا۔ ورچن مسکرایا۔ روتوں نے جو دور دیس میں بسر ہوئی اس کے مہندرے کو کملا دیا تھا۔ ڈورگا دگنے برسوں کا تھا، جھکا ہوا تھا پر کملایا ہوا نہ تھا۔ ڈورگا، جب میں نے پکلی کے آوے کا دھواں آسمان پر دیکھا تو جانا کہ میں اپنوں میں آ گیا ہوں۔ پر اس سمے دریا کے اونچے کنارے پر ماتی کے تینوں اپنے بیل گٹ کو ڈگر ڈگر دوڑاتے تھے اور اس کے پہیے بہت دھول اڑاتے تھے۔ اس میں چنبے کی کون سی بات ہے؟ نہیں ہے، پر دھول کچھ زیادہ تھی۔ مجھے پتا ہے اگر گٹ کے آگے جوتے بیل چاہے جتنا مرضی تیز دوڑیں، پر ان کے سموں اور پہیوں سے اڑتی دھول کہاں تک جاتی ہے؟ ایک خاص بلندی تک، پر اس سے اوپر نہیں۔ پر یہ بہت اوپر تھی، آسمان تک پھیلتی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں کچھ کم ہوا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد میں بہت کم ہوا۔ اوپر دیکھو آسمان خالی ہے۔ باجرے اور تل کا بیج تو کب کا سڑ چکا۔ بستی میں اب ایک دانہ بھی نہیں، بس اسی لیے دھول بیٹھتی نہیں، اڑتی رہتی ہے۔ اور بڑے پانی؟ وہ آتے ہیں پر ٹھہرتے نہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ گھاگرا کے دور تک نظر آتے پاٹ پر سرخی تھی جو سیاہی میں ملتی تھی اور گھل گھل کر پھیلتی تھی۔ ہوا میں سفید پکی رخ پر تولتا تھا، پر پانی میں نہ جاتا تھا، بس اڑتا تھا، پانی کو تاکتا تھا اور پر تولتا تھا۔ گھاٹ پر سروٹ کی 3 کشتیاں ہچکولے کھاتی تھیں، اور بڑی گلی میں ٹھہری ہوئی دھول شام کی تاریکی کو مدھم کرتی تھی۔ اتنے میں مور کی آواز آئی، پر ایسے جیسے سر میں وہم آتے ہیں، مدھم اور مرتے ہوئے۔ ورچن اٹھا اور مشقت سے قدم رکھتا ہوا کنارے پر چڑھنے لگا۔ بیل گٹ کے پہیوں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بھکشو ٹیلا اپنی جگہ بدل چکا تھا، اب وہ راستے سے خاص دور جا کر بیٹھا تھا، پر تھا اتنا ہی جتنا 6-7 برس پہلے تھا، اور جتنا تب تھا جب اس بستی میں پہلی بار کنک کوٹی تھی۔ لنگ ٹیلے پر کسی نے ایک دیا جلایا تھا جس کی مدھم روشنی میں لنگ کا سایہ ڈولتا تھا اور بڑا ہو کر آسمان کو چھوتا تھا۔ اس کے پاس گیندے کے چند مرجھائے ہوئے پھول پڑے تھے۔ بستی کے اندر ہونے لگا تو چند کتے غراتے ہوئے آگے آئے، پر ورچن شانت رہا، نہ بولا نہ کچھ ان سے کہا، اور وہ اس کی بو جان گئے۔ دمیں ہلاتے پیچھے ہو گئے۔ وہ جو 6 برس سے کم تھے وہ بھونکتے رہے، تھوتنیاں لمبی کر کے غراتے رہے، پر انہوں نے جب اپنے سے بڑوں کو دم ہلاتے چاؤں چاؤں کرتے دیکھا تو جانا کہ یہ بندہ اسی بستی کا ہے۔ وہ بھی چپ ہوئے اور پیچھے ہو گئے۔ گھر کے اندر اندھیرا تھا، پر پانی گرنے کی آواز آتی تھی، کنویں والے کمرے سے آتی تھی۔ پاروشنی پانی سے بھرا اور چھلکتا ہوا بوکا دونوں ہاتھوں سے اٹھائے سر پر ڈالنے کو تھی۔ اس نے ورچن کو چھپر تلے کھڑے دیکھا، اور اس کے اندر اتنے برسوں بعد ایک بار پھر مور بولا۔ پیڑھی پر بیٹھی پاروشنی نے گھٹنوں پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر سر جھکا لیا اور چولہے میں پھونک مار کر اپلوں کو دھنانے کا جتن کیا،
पर उनमें से सफ़ेद धुआं ऐसे उठा जैसे उन पर पानी डाल दिया हो, और वो धुआं छप्पर तले मिट्टी के थड़े पर लेटे वर्चन के नथनों में गया तो उसने उसे अपने अंदर तक खींचा, जैसे वो बस उसी धुएं की आस में 7 नदियों के आसपास की बस्तियों से लौट आया था, सिर्फ उसी अपलों के धुएं के लिए जो उसके नथनों में जाता था तो बताता था कि मैं पारोशनी के चूल्हे में से उठा हूँ और वो मेरे सामने पीढ़ी पर बैठी है, जमकर बैठी है। वो हरियोपिया से इधर सीधा नहीं आया था, वो जिधर गया था उधर का भेद उसने किसी को नहीं बताया था। 6-7 बरस की मुद्दत बहुत मुद्दत होती है और कहीं टिक कर ही गुजरती है। वो घाघरा के ऊपर उस बस्ती में था जिसे काली बंगन बोलते हैं। ये बस्ती बहुत बड़ी थी और वहां के रहने वाले उन्हें नहीं जानते थे जो उसी दरिया का पानी पीते थे। वहां भी पक्की नालियां थी, पानी रखने के लिए पक्के गड्ढे थे, पर वहां के लोग मोहनजो और हरिवालों से ज्यादा नर्म और मलूक थे। वहां भाग दौड़ ना थी, और सबसे बड़ी बात जो वर्चन के पांव रोकती थी वो ये थी कि वहां अभी ऊंची नाक वाले नहीं गए थे। ये नहीं कि वो उसे जानते नहीं थे, पर जैसे वो हरी और मोहनजो में थे माल डंगर चुराते हुए वो पक्के घरों से आ गए थे, वैसे वो काली बंगन में नहीं थे। वहां वर्चन ठहरा और वहां नंदी भी थी। उसके 2 बच्चे हुए और वो धीरे धीरे जड़ें पकड़ने लगा। फिर एक शाम वो काली बंगन की बड़ी गली में घूमने को निकला। उसे अपनी बस्ती से निकले 6 बरस से ऊपर हो चुके थे। उसको घाघरा में डाले हुए 6 बरस से ऊपर हो चुके थे। जो रोया ना था, वो जानता ना था कि वो उसका था या समरो का, और फिर भी उसके लिए उसकी आंखें भीगती थीं। तो स्याही में घुलती शाम में उसके नथनों में अपलों के धुएं की बू आई। काली बंगन के तंदूरों में बालन के लिए मन चिट्टी डालते थे, पर जाने क्यों आसपास किसी तनूर में या शायद चूल्हे में उपले सुलगते थे और धुआं देते थे। वो धुआं वर्चन के नथनों में आया तो फिर वो वापस ना गया, और वहीं से काली बंगन की बड़ी गली से सीधा बाहर निकला और खेतों में बैठे अपने आप को खाली करते लोगों से परे होते हुए वो घाघरा के किनारे ऊपर की तरफ जाने लगा, जिधर से दरिया आता था और जिधर उसकी बस्ती थी। और अब पारोशनी चूल्हे में रखे उपलों को फूंके मारकर धुनाती थी और उनका धुआं वर्चन के नथनों में धूमें मचाता था। तुम समरो से मिले? वो सर उठाकर बोली। ये पहली बात थी जो उसने इतने बरसों बाद उससे पूछी कि तुम समरो से मिले। वो जब आया था तो घर के अंदर तारीकी थी, पर पानी गिरने की आवाज आती थी। वर्चन आप ही आप मुस्कुरा दिया। पारोशनी अब भी पानी के बिना नहीं रह सकती थी। पानी उसे जाने क्या देता था। और फिर उसने बोका जमीन पर रखा। कुछ कहे और पूछे बगैर वो चूल्हे के आगे पीढ़ी पर बैठकर उसके लिए अन्न पानी का बंदोबस्त करने लगी। और अब उसने पहली बार मुंह खोला था। नहीं, अभी नहीं। मैं जब इधर आया हूं तो मेरे बालों में रेत और मिट्टी थी, मेरा पेट पिचका हुआ था, मांस पर झुर्रियां थी, मेरी आंखें कहीं और थी, देखती ना थी। मैं अपाया नदी तक तो ठीक था, कभांदी भी मैंने पार कर ली। फिर मुझे कुछ हुआ, और जब मैंने पकली के आवे का धुआं देखा तो मैं ऐसा ही था। डोरगा ने मुझे अपने पास रखा। मुझे इधर आए कई दिन हो गए, पर मैं इधर आज आया हूं। मैं अभी समरो से नहीं मिला। वो अपने छप्पर में होता है और तुम्हारे लिए बहुत दुखी होता है। वो जब सोते में देखता है तो कई बार तुम्हें देखता है। तुम कहाँ थे? अपलों के धुएं के लिए और इस सवाल के लिए वो लौटा था कि तुम कहाँ थे। उसने अपने सफर के दिन रात उसे सुनाए, वो स्वाद जो उसकी जुबान तक आए और उसके तालू में फूटे, और वो रोते जो उसके पिंडों पर बीती, और वो थकावट जो हर मुसाफिर के पाँव में सारा वक्त बैठी रहती है जब वो घर से बाहर होता है। चाहे आराम से हो, मजे से हो और खाट पर पड़ा रहे, तब भी वो थकावट उसके पाँव में बैठी रहती है। और वो जाती है तो उस समय जब वो वापस आता है और एक घर के अंदर पाँव रखता है तो घर से बाहर और दरमियान वो चली जाती है। तो वर्चन के पाँव बड़े नर्म और हल्के हो रहे थे। वो बातें कर रहा था पिछले बरसों की जो उसने बस्ती से दूर बिताए। बस्ती में धूल बहुत ऊपर तक जाती है। किस बस्ती में? पारोशनी ठिठकी और पूछा। इस बस्ती में जिसे हमने आज तक कोई नाम नहीं दिया। डोरगा कहता था मैं बहुत कम आता है इसलिए। पारोशनी चुप रही और डोई से तोरियों को हिलाती रही। हांडी नवीन एक और थी और अपलों का धुआं उसे चाट चाट कर सया कर रहा था। मैं तो कह चुका, अब तुम कहो। मैं वैसी ही रही जैसी थी। सवेरे बस्ती की झंझरों और मटकों में पानी भरती थी, अपना खेत खोदती थी, सब लोगों के साथ ऊपर देखती थी कि मैं बरसे, खाली आसमान देखती थी। तुम्हें पता है कि बाजरे का बीज खत्म हो गया है। हम कोई संभाल कर तो रखते नहीं थे। एक बार बोया और दूसरी बार काटते हुए अगली बार के लिए रख लिया तो वो मिट्टी में दबा रहा और पानी के बगैर सूख सड़ गया। धुरवा को हल्काए कुत्तों ने काट लिया जो किसी सिंह के पीछे रुखों से निकलकर रेत की तरफ चले गए थे। धुरवा गया? नहीं, उसने अपने कांटे पर आग का दूध निचोड़ा और अब ठीक है। वो खुद भी थोड़ा सा हल्काया हुआ है। वर्चन मुस्कुराया। पारोशनी धीरे धीरे बातें करती रही और डोरगा अच्छा भला होता है और चौंक जाता है। कान पर हथेली जमा कर कहता है सुनो, और हम कुछ नहीं सुन पाते, लेकिन वो कहता है कि मैं सुनता हूं और तुम मुझे सुनकर बताओ कि मैं क्या सुनता हूं। और चीवा अभी तक रुखों से नहीं लौटा, मामा मासन के पास है। जाने वो है भी या नहीं? वो है। पारोशनी यकीन से बोली। वो तुम्हारी और मेरी तरह है।
जब मैं भी झील को जाती हूँ तो वो रुखों में होते हैं, अब वो नीचे नहीं आते, मुझसे बात नहीं करते, पर मैं जानती हूँ कि वो वहां है। झील को जाती हो? बहुत कम, वो सूख गई है। वर्चन की आंखों में वो रात गहरी हुई जब पारोशनी के अंदर, घने अंदर जहां नम तारीखी थी, वहां कुछ बोलता था और उन दोनों पर पूरा चांद पड़ता था। वो रुखों के बीच झील के पास उस कलराठरी जमीन पर जहां कभी झील थी लेटे थे, और वहां थे जहां परिंदे मरने के लिए आ जाते थे और उनके जिस्मों तले परिंदों की हड्डियां कड़कड़ाती थीं। पारोशनी कलराठी जमीन पर ऐसे पड़ी थी जैसे पत्तों और टहनियों वाला एक सालिम रुख वहां गिर पड़ा हो। वो पत्ते बूटे जो पकली ने उसके पिंडे पर उलेखे थे। पारोशनी डोई चलाते हुए रुकी और उधर देखा जहां वर्चन थड़े पर बैठा था, और वो बहुत कम दिखाई देता था। अपलों की रोशनाई पारोशनी के मुहंदरे को लचकाती तो थी, पर वहां मुश्किल से वहेड़े तक जाती थी और थड़े पर बैठे वर्चन तक ना पहुंचती थी। तारीकी बहुत गहरी थी, उसमें गर्म बेचैनी थी। पारोशनी ने वर्चन पर नजर डाली और जान गई कि उसकी आंखों में क्या है और वो कहाँ है। वो उसके पिंडे पर उलेके बेलबूटों में है, और वो ये भी जान गई कि वहां किसी और बस्ती में वो इसी तरह थड़े पर बैठकर अन्न पानी के उडेक में किसी ऐसे ही मुहांदरे को देखा करता था जिस पर चूल्हे में जलने वाली आग का लश्कारा पड़ता था, और वो उसे छोड़कर आ गया था। उसी समय मोर बोला, ऐसे जैसे आखिरी बार बोलता है। उसे सिर्फ वर्चन और पारोशनी ने सुना। ये अब भी है? हाँ, पर अब इसके पर झड़ने लगे हैं और इसकी झाड़ू झालर के रंग फीके होते जा रहे हैं। पिछली बार जब मैं उधर गई तो मैं पास से गुजरी, पर इसने मुझे देखा नहीं। उसकी आंखें बूढ़ी होकर कम देखती हैं, और तुम्हें पता है डोबू मिट्टी भी अब पेटी हो गई है। एक रोज मैंने 15 को उस पर चलते देखा। तू भी उस पर चली? नहीं, मैंने पांव का भार डालकर देखा है, वो पेटी हो चुकी है, पर मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने उसके दरमियान जो रास्ते बना रखे हैं उन पर चलती हूँ, मैं उस पर नहीं चल सकती जिसमें मेरे सामने कई जनावर और बंदे धीरे धीरे धंसकर नीचे हुए और गुम हो गए। और क्या पता वो वहीं कहीं से पेटी हो चुकी हो और कहीं से अभी डोबू हो। ऊपर सख्त दिखाई दे और नीचे से वही गहरा कीचड़ तना कि रुख डूब जाए और उसका टहनी पत्ता भी गुम हो जाए तो पता ना चले। वर्चन ने यह ना पूछा कि डोबू मिट्टी जो तब से थी जब से रुख थे, बस्ती और घाघरा थे, तो ये अब पेटी कैसे हो गई? क्योंकि ये तो हर किसी के समझबूझ में आता था कि डोबू मिट्टी पर हर बरस बड़ा पानी आता था, ठहरता था, और इतनी देर ठहरता था कि सारे बरस में वो जितनी खुश्क होती थी फिर उतनी ही गीली होकर नर्म कीचड़ में बदलती थी। तो अगर वो पानी अब उस तक पहुंचे नहीं तो वो डोबू कैसे रहे? वो तो सूखी रहेगी, और फिर मेह भी कम हुआ तो और खुश्क होगी। और 15 हिरन उस पर चलता था। हांडी पक गई तो पारोशनी ने उसे उठाकर बराबर के खाली चूल्हे पर रख दिया और फिर दहकते हुए अपलों पर मिट्टी के तवे को जमा दिया। ये तवा यूं तो पकली ने पका कर दिया था, पर चूल्हे पर चढ़ने से अब ये सुर्ख पत्थर की तरह लगता था। थोड़ी देर बाद पारोशनी ने तवे को उंगली से छुआ और फिर सी करके पीछे हो गई। वो इतना गर्म हो चुका था कि उस पर रोटी पक सके। वो चाहती तो बस्ती के तनूर पर जा सकती थी, पर आज वो जाना नहीं चाहती थी। वर्चन दूर से हांडी के गोल थल्ले को देखता रहा जिस पर छोटी छोटी चिंगारियां चमक कर बुझती जाती थीं। बहुत बरसों पहले जब वो ऐसे ही रोटी के लिए मुंह खोले बैठा रहता था, तब उसकी मैया जब हांडी पकाती तो बाद में देर तक उसका थल्ला इसी तरह तारीकी में जगमगाता रहता और वो सहचंबे से तकता कि ये कैसे होता है। और आज भी वो इसे तारीकी में चमक कर बुझते देखता था, जैसे हांडी के सया थल्ले में एक तारों भरा आसमान चमक कर बुझ रहा है। वो उसे अचंबे से तकता था। मैया और पारोशनी एक है। सब स्टोरियों में रुत बदलने का स्वाद और संदेशा था। वर्चन ने उनकी ताजगी को देर तक मुंह में रखा। खाने के बाद वो उसके करीब पीढ़ी पर बैठा रहा और उसके वहां होने को, अपने पास होने को महसूस करता रहा। वो भी पीढ़ी पर थी। चूल्हे में उपले सफेद राख तले मध्यम पड़ रहे थे और दरिया की तरफ से ठंडक हौले से चलती आती थी। अब तू रहेगा या फिर जाएगा? मैं नहीं जानता। मैं कोई मनमर्जी से थोड़ी जाता हूँ। मेरी मर्जी तो इधर तेरे पास है, इधर इस चूल्हे के पास, जिसमें सुलगते उपले तेरे महांदरे को ऐसे लश्काते हैं जैसे बादलों की चमक से काले हिरन का जुस्सा लशकता है। पर मैं अपने आप में नहीं होता और निकल जाता हूँ, जैसे मासा गया, जीवा गया। वो भी मनमर्जी से तो नहीं गए, उन्हें जाना पड़ा है। मैं भी रह नहीं सकता। मेरे तलवों में चोटियां करवट लेती हैं कि चल, और मैं चल देता हूँ। और जब पहली रात आती है तो मैं किसी अनजानी मिट्टी पर लेटता हूँ। उसकी बास मेरे अंदर जाती है। फिर मैं उस आसमान को देखता हूँ जो देखा हुआ है, पर वहां से कोई और लगता है। तो फिर मेरे अंदर बुलबुले छूटते हैं, जैसे नीचे मछली हो तो ऊपर पानी पर छूटते हैं। और फिर मैं उस बड़े जुस्से का हिस्सा बन जाता हूँ जो ये सब कुछ है हमारे आसपास, ऊपर नीचे, आसमान, मिट्टी, तारे और दरिया, और सब कुछ जो इनमें सांस लेता है, रेंगता है। तो मैं उस बड़े जुस्से का एक हिस्सा बन जाता हूँ और तब तक बना रहता हूँ जब तक वो मुझे अपनाए रखते हैं। और फिर एक ऐसा सांस आता है जो मुश्किल से आता है। उसमें कहीं उपलों का धुआं और घाघरा की ठंडक तैरती है। और फिर ऐसे में
میں من مرضی کے بغیر اس بڑے جثے سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہوں اور اپنی بستی کی طرف لوٹتا ہوں۔ بندہ رخ تو نہیں جو ایک جگہ جڑیں پھیلا کر حیاتی ختم کر دے۔ یہ تو نے کہا تھا، اگر سارے ایسے ہی کریں تو بستیاں کیسے آباد ہوں؟ یہ تو اجڑ جائیں۔ بستیاں بندے نہیں اجڑتے، ان کے سانس بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تک آتے رہتے ہیں تو یہ آباد رہتی ہیں، اور بند ہو جائیں تو اجڑ جاتی ہیں۔ ہاں، ان کے سانس ہم سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسے چھوڑایا؟ کسے؟ اسے جو میری طرح چولہے کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا مہاندرا اپلوں کی روشنائی سے لشکتا تھا، اسے؟ ہاں۔ پاروشنی اٹھی اور اپنی تھکاوٹ کو سنبھالتی چھپر تلے بچھی پرالی کی ڈھیر پر جا لیٹی۔ ورچن نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، پر وہاں صرف اس کے پاسا پلٹنے سے جو پرالی چرمراتی تھی اس کی آواز تھی، نہیں تو تاریکی تھی۔ وہ پیڑھی سے اٹھا، کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوا اور پھر تھڑے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ پاروشنی کو دیکھ نہ سکتا تھا، پر اس کے کان ادھر لگے تھے۔ پرالی چرمراتی تھی۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ پاروشنی جو پاسے پلٹتی ہے اسے آنے کو کہتی ہے یا تھکاوٹ سے ایسا کرتی ہے، پر جان نہ سکا۔ پاروشنی، اس نے پکارا اور اپنی آواز کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھا۔ میں اس بستی کے لیے نہیں، تیرے لیے لوٹ کر آیا ہوں۔ اس نے اندھیرے میں اس کے پنڈے کو جانا اور یہ جانا کہ وہ ویسی ہے جیسی اس رات رکھوں کے بیچ کلراٹی زمین پر جہاں کبھی جھیل تھی۔ وہ اسے دیکھ سکتا تھا اور اس کے پنڈے پر دیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ وہ اس کے برابر لیٹنے کو تھا کہ پاروشنی اپنی ہتھیلی کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سرگوشی کی۔ وہ اس کوکھ میں یوں ٹھہرا جیسے ایک پہاڑی کھو میں ہرن آباد ہوا، ٹھہرا اور پھر چلا گیا۔ اور تم پوچھتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ ورچن کا ہاتھ جہاں تھا رک گیا۔ وہ ٹھیک سے بول نہ سکا۔ تم بھولتی نہیں؟ نہیں۔ پاروشنی کی آواز آئی اور اس نے جانا کہ اس کی آنکھیں سوکھی نہیں ہیں۔ تم میں ابھی بہت گرمی ہے جس میں بہت کچھ پھوٹے گا اور سوکھے گا۔ گرمی زیادہ ہو تو ڈوبو مٹی بھی سوکھ جاتی ہے۔ ہاں، پر تم ایک بار پھر ویسی ہو جاؤ گی۔ ورچن کا ہاتھ آگے ہوا تو پاروشنی کا ہاتھ اس پر آیا۔ نہیں۔ ورچن چپکے سے اٹھ کر تھڑے پر جا لیٹا۔ پاروشنی اب پاسے نہیں پلٹتی تھی، پر وہاں سے اس کے دکھ کی ہلکی آواز کبھی کبھی آتی تھی اور ورچن کے اندر تک جاتی تھی۔ اسے اس نے گھاگرا میں نہیں اپنے اندر ڈبویا تھا۔ وہ چپ رہا کہ وہ اپنے لوگ کے ساتھ اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ورچن کا گلا سوکھنے لگا۔ وساکھ کی راتیں اتنی گرم تو نہیں ہوتی تھی۔ پاروشنی تھوڑی دیر چپ رہی، پھر اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بولی، ایسی ہی تھی۔ نہیں، ان برسوں میں بڑا فرق پڑ گیا ہے، اتنی گرمی نہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا تم ادھر تھی اس لیے۔ مجھے یاد ہے اس سمے ٹھنڈک ہوتی تھی اور جثے کے لو دانوں کی طرح ابھرتے تھے۔ اس کے باوجود تمہیں پیاس بہت لگتی تھی۔ تم ساری رات اٹھ اٹھ کر پانی پیتے تھے۔ کیا تھا تمہارے اندر جو اتنا پانی مانگتا تھا؟ مجھے؟ ورچن سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے جانا کہ وہ ابھی اپنے روگ کے ساتھ ہے۔ تم بھی تو پانی بنا رہ نہیں سکتی۔ آج جب میں آیا تو ہاں، مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے، اور یہ بھی پتا تھا کہ تم رات کو اٹھ کر اپنے سرہانے ہاتھ پھیرو گے پانی کے لیے۔ تو ذرا دیکھو اپنے سرہانے۔ ورچن نے وہیں لیٹے لیٹے بازو سیدھا کر کے ہتھیلی پھیلائی تو وہاں تھڑے کے ساتھ ایک جھنجر کی لمبی گردن تھی جو ٹھنڈی تھی۔ رات کو پیاس لگے تو پی لینا، اب میں سوتی ہوں۔ اس کے پاسا پلٹنے کی چرمراہٹ ہوئی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں پاروشنی کی چوڑی ناک اور کھلے موٹے ہونٹوں سے برابر کے نکلنے والے گہرے اور بھرے ہوئے سانس کی آواز آنے لگی۔ پیاس مجھے تو نہیں، سمرو کو بہت لگتی ہے، اور یہ ابھی تک جان نہ سکی کہ ورچن کون ہے اور سمرو کون ہے۔ ورچن نے بھی پاسا پلٹا اور سونے کا جتن کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 10 سماعت فرمائیں۔